reagent like platinum catalyst. So that will convert the given alkene. For example, we have taken here ethene. It will get converted into ethane. Next, alkene will be treated with nickel catalyst NH2. It will convert the alkene to alkane. Also, we can use platinum as a catalyst. It will convert it into ethane. The next reducing agent is called as Wilkinson catalyst. So first of all, we'll try to understand what is Wilkinson catalyst. Wilkinson catalyst is PPH3 whole thrice RHCl. This is called as tris triphenyl rhodium chloride. So the name of this is Wilkinson catalyst is tris triphenyl phosphine rhodium chloride. So this is also called as Wilkinson catalyst. So this is nothing but the Wilkinson catalyst PPH3 whole thrice RHCl. The working function of Wilkinson catalyst is it reduces CC double bond to single bond only. It does not reduces CC triple bond to CC double bond. Hence, we can also say that this gives selective reduction. It gives selective reduction of CC double bond to CC single bond only. It does not reduces CC triple bond to CC double bond. But these reagents like H2PT, H2 nickel and H2 platinum will convert CC triple bond to CC double bond first, and then if they will be present in excess amount, it will convert CC double bond to CC single bond as well. So now we will try to understand preparation of alkanes from reduction of alkynes. There are some methods in which we can reduce alkynes to alkanes. So in this case, we will use H2PT as a reducing agent. So H2PT will convert the CC triple bond to CC double bond first, and since it is in excess amount, or we can say that the second equivalent will convert alkene to alkane. So if the amount of H2 will be in equivalent, it will convert double bond only. In presence of one equivalent, it will get converted into double bond only. And if H2PT will be present in excess amount, it will convert it into alkane. So we can say that for the one equivalent of amount, CC triple bond will get converted into CC double bond. But if H2PT is available in two equivalent, then it will convert triple bond to single bond. So in systematic way, first it will convert triple bond to CC double bond, and in case of the second equivalent, it will get converted into single bond. Same thing will happen in case of nickel catalyst. So triple bond will get converted into double bond first, and if it will be in excess amount or second equivalent, it will get converted into single bond. So triple bond to double bond and then double bond to single bond. Now we can see H2PT in presence of H2PD platinum, it will get converted into double bond and then again in single bond. This is called as Lindlar's catalyst. So what is Lindlar's catalyst? Lindlar's catalyst is nothing but the H2PD and poisoned BaSO4 or poisoned CaCO3. So H2PD BaSO4 is called as Lindlar's catalyst, and it always gives selective reduction. It always gives selective reduction. Selective reduction means what? It only converts CC triple bond to CC double bond. It does not reduces CC double bond. So we can say that once the alkyne will get converted into alkene, it will not get converted into alkane even in presence of excess amount.
तो अगर एक्सेस अमाउंट भी इसका हम ले रहे हैं तो डबल बॉन्ड तक ही रिएक्शन होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन नहीं होगा। बट बाकी के सारे रिएजेंट्स में हम देख पा रहे थे कि ऐसे वाले रिएजेंट्स में अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो कन्वर्ट कहां तक हो रहा है, सिंगल बॉन्ड तक जा रहा है। बट इसमें सिंगल बॉन्ड तक कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन विल स्टॉप अप टू डबल बॉन्ड स्टेज ओनली इवन in the presence of excess amount of Lindlar's catalyst. That's why this is also called as selective reduction, CC triple bond to CC double bond. One more feature is there, it gives syn addition only. वैसे तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट अभी तक हमने लिए हैं सभी के सभी सिन एडिशन दे रहे हैं। ऑल दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स आर गिविंग सिन एडिशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। सारे के सारे क्या दे रहे हैं? ऑल दीज आर गिविंग सिन एडिशन। नाउ Lindlar's catalyst gives selective reduction of CC triple bond to CC double bond only. It will not reduce CC double bond to CC single bond. What is Lindlar's catalyst? It is H2PD BaSO4 poisoned or H2PD CaCO3 poisoned. Lindlar's catalyst does not reduce CC double bond to CC single bond. Wilkinson catalyst gives selective reduction of CC double bond to CC single bond only. जहां पे Lindlar's catalyst CC triple bond को सिर्फ CC double bond में कन्वर्ट करेगा, वहीं पे विल्किंसन कैटलिस्ट का ऐसा नहीं है, वो सिर्फ CC double bond को CC single bond में कन्वर्ट करेगा, वो CC triple bond पे रिएक्शन नहीं करेगा, CC triple bond को रिड्यूस करेगा ही नहीं। Hence Wilkinson catalyst does not reduce CC triple bond. So ऐसा कह सकते हैं Wilkinson catalyst gives selective reduction, also Lindlar's catalyst gives selective reduction, but दोनों का selectivity is different. Lindlar's का selectivity है CC triple to CC double bond and Wilkinson catalyst का selectivity है CC double bond to CC single bond. Now let us consider some reactions of alkanes जिसमें सबसे important है halogenation of alkanes. So what is halogenation? किसी भी अल्केन को सनलाइट के प्रेजेंस में क्या डाल देना है? हैलोजन, लाइक Br2 Cl2 और मे बी I2। F2 यूज नहीं करेंगे फ्लोरीन बिकॉज दैट इज हाईली अनरिएक्टिव और कभी कभी उसके रिएक्टिविटी कम या ज्यादा हो जाने की वजह से अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। सो sometimes F2 become highly reactive, hence that produces undesirable products। और किसी रिएक्शन में उसका रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो होता है। तो यूजुअली वी विल नॉट बी यूजिंग F2, वी विल बी यूजिंग Br2 Cl2 और I2। सो अल्केन को जब रिएक्शन करवाएंगे Br2 के प्रेजेंस में, Cl2 के प्रेजेंस में या I2 के प्रेजेंस में, तो ये बना लेगा RX, मतलब अल्काइल हैलाइड बना लेगा। इसमें सिलेक्टिविटी क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा वो भी समझ लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें होता है 3 डिग्री R मोर देन 2 डिग्री R मोर देन 1 डिग्री R। मतलब 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा CH4। तो 3 डिग्री RX का फॉर्मेशन ज्यादा फास्ट होगा 2 डिग्री RX के कंपैरिजन में, और 2 डिग्री RX का फॉर्मेशन 1 डिग्री RX के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्काइल, देन 1 डिग्री अल्काइल एंड देन CH4। सो अगर यहां पे फॉर्मेशन में कंपाउंड में देखेंगे ध्यान से कि अगर दोनों पॉसिबिलिटी है, लाइक यहां पे ये 2 डिग्री कार्बन एटम है और ये 1 डिग्री कार्बन एटम है और ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम है, तो हैलोजन के जाने का चांसेस कहां पे है? 2 डिग्री पे जाएगा, 1 डिग्री पे नहीं जाएगा और 1 डिग्री पे नहीं जाएगा। तो सिलेक्टिविटी को भी ये फॉलो करेगा। लाइक अगर हमारे पास चॉइसेस अगर हमारे पास दिए हुए हैं, सपोज हमारे पास चॉइस है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो हैलोजिनेशन कहां पे होगा? 3 डिग्री पे, 2 डिग्री पे नहीं होगा। सपोज हमारे पास चॉइसेस है 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो 3 डिग्री पे होगा, 1 डिग्री पे नहीं होगा। सपोज हमारे पास है 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 2 डिग्री पे होगा, 1 डिग्री पे नहीं होगा। ओके, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में 3 प्रोसेस होते हैं, चेन इनिशिएशन, जिसको सिंपली इनिशिएशन भी बोल सकते हैं, देन चेन प्रोपगेशन एंड देन द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन। तो बेसिकली वी आर हैविंग 3 स्टेप्स फॉर द हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन्स। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा? इन इनिशिएशन स्टेप Br2 will break down in presence of sunlight in free radicals। तो 2 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो अल्केन पे अटैक करेगा। अब अल्केन पे अटैक कैसे करेगा ये भी ध्यान देना है।
2 डिग्री वाले जो कार्बन एटम है उसका हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करेगा। यहां पे देखिए 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन पे अटैक होगा, 1 डिग्री वाले पे नहीं होगा, 1 डिग्री वाले पे नहीं होगा। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब भी अटैक होगा तो उसमें ध्यान देना है, 1 डिग्री वाले में नहीं कराना है, 2 डिग्री पे कराना है, 1 डिग्री पे नहीं कराना है। सो यहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, वो फ्री रेडिकल बनेगा। वो कौन सा बनेगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल विल अगेन रिएक्ट विथ Br2। यहां पे जितने भी डिसोसिएशन हो रहे हैं, होमोलिटिक डिसोसिएशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 2 डिग्री डिसोसिएशन के बाद Br से रिएक्शन करके ये बना चुका है Rx। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये Rx प्रोडक्ट बना चुका है, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। बट इसके बाद भी रिएक्शन रुकता नहीं है, एक लास्ट स्टेप होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में यूजुअली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलते हैं, मींस जो हमें नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जिसको बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या किसी और भी मेथड से सेपरेट करके हम लोग उसको अलग कर देते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अल्काइल फ्री रेडिकल 2 डिग्री का बन चुका था, वो आपस में कंबाइन करके फिर से ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना दिया, जो कि हमें जरूरत नहीं था। कुछ काम के भी प्रोडक्ट जो हमें यूजुअली रिक्वायर्ड है वो भी प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे आरएक्स फिर से बना लिया यहाँ पे। तो टर्मिनेशन स्टेप में कुछ कुछ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी मिलते हैं अलॉन्ग विद द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। So these were the 3 steps. First step were chain initiation, then chain propagation and then chain termination. तो इनमें ध्यान ये रखना है सिलेक्टिविटी का कि किसी भी अल्केन में अगर हेलोजन डाल रहे हैं तो वो कहां कहां पे जा सकता है। तो जहां पे ज्यादा डिग्री का फ्री रेडिकल बना रहा है वहां पे जाके वो अटैच हो जाएगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा Rx. So I hope it's clear. So let me summarize once. These were the preparation method of the alkanes. इसमें इतने सारे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ एक रिएजेंट जो है वो सिलेक्टिव देता है, सिर्फ डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। बाकी ये सारे रिएजेंट्स डबल को सिंगल बनाते हैं और ट्रिपल को डबल बनाते हैं, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखेंगे यही प्रॉपर्टी को यहां पे दिखाया गया कि ये ट्रिपल से डबल भी कर रहे हैं कन्वर्जन और डबल से सिंगल कन्वर्जन में भी जा रहे हैं। बट सिर्फ एक लिंडलास कैटलिस्ट है जो कि सिर्फ सेलेक्टिव रिडक्शन देता है, ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड, वो डबल से सिंगल में कन्वर्जन नहीं देता है। तो लिंडलास कैटलिस्ट का सिलेक्टिव रिडक्शन देगा, विल्किंसन कैटलिस्ट सिलेक्टिव रिडक्शन देगा, लिंडलास कैटलिस्ट सीसी ट्रिपल टू सीसी डबल बॉन्ड कन्वर्ट करेगा, विल्किंसन कैटलिस्ट सीसी डबल बॉन्ड टू सीसी सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करेगा, और ये सारे के सारे एडिशन जो होंगे वो सिन एडिशन होंगे, मतलब सेम साइड से हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑलवेज सिस कंपाउंड बनेगा, ट्रांस कंपाउंड कभी भी फॉर्म नहीं होगा। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में हमें ध्यान रखना है सिलेक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री मोर देन, 2 डिग्री मोर देन, 1 डिग्री मोर देन CH4। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, तो ज्यादा डिग्री का कार्बो जो फ्री रेडिकल है वो बनेगा और वहीं पे हेलोजन जाके अटैच्ड हो जाएगा। तो नाउ वी कैन कंसिडर वन प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज write all the possible monobromination product for the following reaction excluding stereomers। so हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ रहे हैं वो हम कंसिडर करेंगे एक्सक्लूडिंग द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखेंगे कि ब्रोमीन कहां कहां जा सकता है। तो सबसे पहले एक कार्बन यहां से जुड़ सकता है, यहां से अगर जोड़ दिया हमने तो फिर वापस यहां पे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि कंपाउंड रिपीट हो जाएगा यहां पे जोड़ने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहां पे जोड़ दिया है। फिर यहां पे जोड़ सकते हैं, यहां पे जोड़ा तो फिर यहां पे नहीं जोड़ेंगे। इन दोनों पोजीशन में से कोई एक जगह पे डाल सकते हैं क्योंकि दोनों रिपीटेड कंपाउंड बना देंगे। इन दोनों पोजीशन की बात करें, इन दोनों पोजीशन में से भी कोई एक पोजीशन पे डालेंगे क्योंकि ये रिपीट हो जाएंगे। तो इन दोनों में कोई एक पोजीशन और इन दोनों में कोई एक पोजीशन, एंड देन इन दोनों में कोई एक पोजीशन, एंड देन इन दोनों में कोई एक पोजीशन। सो लेट मी रिपीट द प्रोसीजर। इन दोनों में से कोई एक पोजीशन,
इन दोनों में से कोई एक पोजीशन, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन। तो ये टोटल कितने पोजीशन हो रहे हैं? 4 पोजीशन। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 इज दिस, पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज दिस, पॉसिबिलिटी नंबर 3 इज दिस एंड पॉसिबिलिटी नंबर 4 इज दिस। सो एक एक करके देखेंगे। अगर ये पोजीशन पे डालेंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला है, और सिंपली वी कैन से दैट कि अगर यहां पे हमने डाला है तो ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। वन बाय वन जाएंगे। लेट मी रिपीट, यहां पे ब्रोमीन डाला तो ये प्रोडक्ट मिला। उसके बाद अगर हमने ब्रोमीन इस वाले पोजीशन पे डाला तो ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद ब्रोमीन अगर हमने इस वाले पोजीशन पे डाला तो ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। और उसके बाद अगर ब्रोमीन हमने इस वाले पोजीशन पे डाला तो ये वाला मिल रहा है। सो टोटल 4 मोनोब्रोमिनेशन कंपाउंड मिल गए, जिसमें हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री या ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसीडर नहीं किया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, इसमें बताना है कि ब्रोमीन कहां कहां पे जा सकता है, कितने मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो ब्रोमीन एक यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, एंड ब्रोमीन यहां या यहां दोनों में से किसी एक पोजीशन पे जा सकता है, बिकॉज दोनों सिमेट्री होने की वजह से, सॉरी, यहां या यहां दोनों में से किसी एक पोजीशन पे जा सकता है, बिकॉज सिमेट्री की वजह से दोनों रिपीटेड हो जाएंगे। तो दोनों पोजीशन में से किसी एक जगह पे भेजेंगे। तो लेट मी रिपीट, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां और यहां में दोनों किसी एक पोजीशन पे जा सकता है, अदरवाइज रिपीट हो जाएगा। फिर यहां पे और यहां पे दोनों में से किसी एक जगह पे जा सकता है, और फिर यहां पे जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज हियर, सेकंड पॉसिबिलिटी इज हियर, थर्ड थर्ड possibility is either here or here, fourth possibility is either here or here, fifth possibility is here. So total there are 5 possibilities. Let me repeat, first possibility, second possibility, third possibility, any one of these, fourth possibility, any one of these, fifth possibilities, any one of these. So let me write down one by one. This possibility I have written here, this possibility I have written here, this possibility, or maybe we can say this possibility I have written here, and this possibility I have written here. Let me repeat, this possibility I have written here, 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 and this possibility I have written here. So total there are 5 possibilities. So now we will consider this problem. Again we have to write total monobromination product. तो सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल है वो हमें लिखना है गिवन कंपाउंड में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को छोड़ के। तो इस वाले कंपाउंड में अगर देखें तो कहां कहां जा सकता है, यहां पे सबसे पहले समझ लेंगे कि इस वाले पोजीशन पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, वैलेंसी खाली नहीं है, चार के चारों वैलेंसी ऑक्यूपाइड है कार्बन के साथ। तो यहां जा सकता है, यहां अगर दे दिया तो यहां 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 दोनों में से किसी एक जगह जा सकता है, बिकॉज दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन है। फिर कहां जा सकता है, यहां पे जा सकता है, और नहीं तो यहां पे आ सकता है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी तो अभी मिल गए, या तो यहां यहां या यहां में से दोनों में से किसी एक जगह पे, यहां पे जा सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया ये, तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो गया, यहां पे जा ही नहीं सकता क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट है, यहां पे और यहां पे तीनों जगह में से किसी एक जगह पे जा सकता है, और यहां पे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट है। तो लेट मी रिपीट द प्रोसेस, यहां में से किसी एक जगह पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज सेकेंड पॉसिबिलिटी, दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी, इन तीनों में से कोई एक जगह पे फोर्थ पॉसिबिलिटी, यहां और यहां जा नहीं सकता है। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी। तो समझेंगे इस बात को, जब यहां पे ब्रोमीन ऐड होगा तो ये कंपाउंड बनाएगा, जब ब्रोमीन यहां पे ऐड होगा तो
ये कंपाउंड बनाएगा। जब ब्रोमीन यहां पे ऐड होगा तो ये कंपाउंड बनाएगा। जब ब्रोमीन इन तीनों पोजीशन में से किसी एक जगह पे जाएगा तो वो फोर्थ कंपाउंड ये वाला बनाएगा। हेंस टोटल पॉसिबिलिटी इसमें कितने आ गए? 4 पॉसिबिलिटी। तो टोटल 4 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव मिलेंगे। इसको ब्रोमिनेशन करवाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो 4 पॉसिबिलिटी मिलेंगे, वो हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन, that is Kolbe electrolysis. So Kolbe electrolysis is a very good example for the preparation method of alkane. So alkane के preparation करने का ये best method है, because इसमें good yield में amount भी मिलते हैं, it gives good amount of the product, hence this is a very good method for the preparation of alkanes. So इस process में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है और वो बना लेता है अल्केन। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया और वो बना लिया आरआर, दैट इज अल्केन। और इस प्रोसेस में रिलीज क्या होता है? CO2 गैस रिलीज होता है इस प्रोसेस में। मैकेनिज्म को समझना है इसमें। एनोड, जैसा कि नाम से ही पता है, एनोड पे क्या होता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एनोड पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या? Simply we can understand this LEO, short method LEO. Leo means what? Loss of electron. LEO, loss of electron means oxidation. LEO, L stands for loss, E stands for electron, O stands for oxidation. So loss of electron is oxidation. Next term is GER. G stands for gain, E stands for electron, R stands for reduction. Gain of electron is reduction. So loss of electron is oxidation, gain of electron is reduction. Always remember, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो एनोड पे क्या होगा? LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एट एनोड। GER, gain of electron, reduction at cathode. So लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे होगा एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे होगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो प्रोसेस कैसे होगा? व्हाइल द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और रिलीज करके बना लेगा फ्री रेडिकल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। ये जो कंपाउंड बना है इलेक्ट्रॉन लूज करने के पास, यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज करने के बाद ये ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया, फ्री रेडिकल बना लिया। तो फ्री रेडिकल इस तरह से होमोलिटिक क्लीवेज करने के बाद क्या बना लेगा? ये बना लेगा 2 मोल्स ऑफ फ्री रेडिकल, जो कि बाद में आपस में कंबाइन कर लेंगे और बना लेंगे आरआर। सो दिस आरआर इज नथिंग बट द अल्केन। ये अल्केन का फॉर्मेशन यहां पे हो चुका है। सो दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट एनोड। नाउ लेट्स सी कि कैथोड पे क्या हो रहा है। तो कैथोड पे होना है रिडक्शन प्रोसेस, कैथोड पे होगा रिडक्शन प्रोसेस। सो एनोड पे क्या हो गया? एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन वाला प्रोसेस। तो एनोड में क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। किसने किया इलेक्ट्रॉन लूज? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। सो वी कैन से दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, बिकॉज इसके साथ रहा होगा Na+ भी रहा होगा, तो लूज करके ऐसा बना लिया। कैथोड पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या होगा? Na+ विल गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम। ये सोडियम क्या बना देगा? सॉलिड। अब सोडियम प्लस वाटर, ये सोडियम बना रहा है सॉलिड। अब ये सॉलिड वाटर में घुलेगा और वाटर में घुल के ये क्या बनाएगा? वाटर में ये घुल जाएगा और वाटर में घुल के NaOH बना लेगा और हाफ मोल ऑफ H2 विल बी रिलीजिंग। तो यहाँ पे दिस प्लस साइन का मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। Na+ इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ना कि लूज कर रहा है। हमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्शन के लेफ्ट में आ रहा है तो गेन, और इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्शन के राइट हैंड साइड में आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है, नॉट प्लस, दिस इज माइनस मीन्स लूजिंग, माइनस मीन्स लूजिंग एंड प्लस मीन्स गेनिंग। यहाँ पे प्लस साइन बता रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
प्लस मीन्स गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो लेफ्ट हैंड साइड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस, और सोडियम प्लस वाटर बाद में मिलकर बना देते हैं NaOH plus half H2. So we'll see some example of Kolbe electrolysis. So Kolbe electrolysis के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे CH3 CH2 COONA, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बना लेगा ब्यूटेन। इसका एक प्रॉपर्टी है, Kolbe electrolysis always produces symmetrical alkane. अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना पॉसिबल नहीं है। So the next reaction is Woods reaction. In Woods reaction, what will do? RX will react with sodium and it will produce alkane and alkane. So we'll try to understand the mechanism as well. Mechanism क्या होता है? Sodium is alkaline earth metal. So जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या करते हैं? दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। व्हाई दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स? बिकॉज उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके ऑर्बिटर से, और वो बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में आ गया। नॉट एक्साइटेड स्टेट, एक्चुअली आयोनाइज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था वो वहां से बाहर आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन सोडियम विल गेट आयोनाइज्ड। So the basic reason to get ionized is at very normal temperature, or we can say at room temperature, we can say थोड़ा सा भी हीट देने पे सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, बिकॉज उसका आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी लो। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है लाइक सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, these metals are called as alkaline earth metals. Let me repeat: sodium, lithium and potassium. These are alkaline earth metals and they have very good tendency to lose the electrons at very normal temperature because they have very less ionization energy. तो क्या होता है मैकेनिज्म में, समझेंगे इस बात को। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है यहां पे, सोडियम इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, तो सोडियम विल रिलीज एन इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट and they will form a sodium plus इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन की हेल्प से RX का बॉन्ड टूट जाता है ड्यू टू फ्री रेडिकल, एंड यहां पे CH3 माइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक्चुअली ये सोडियम की वजह से यहां पे आएगा Na प्लस हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन दिया था इसने यहां पे, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। कैसे? यहाँ पे सोडियम के जगह पे अगर हम लोग दिखा दें इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ से आया था, सोडियम के रिलीज करने से आया था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा R पे, और इसके बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होगा लाइक दिस। द होमोलिटिक क्लीवेज विल टेक प्लेस एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है ही और Na प्लस भी है आयनाइज फॉर्म में, तो ये कंपाउंड बना लेगा। उसके बाद क्या होगा? दिस R माइनस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लाइकिंग स्पीसीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। दे हैव अ वेरी गुड अटैकिंग टेंडेंसी। एंड हैलोजन का जो रोल है यहाँ पे, हैलोजन इज एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप। हैलोजन इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। दिस हैलोजन इज लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। व्हाट इज लिविंग ग्रुप? जो लीव आउट हो जाए रिएक्शन में उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। सो हैलोजन इज अ लिविंग ग्रुप। तो लीव आउट होने के बाद ये कंपाउंड क्या बना लिया? RR। द फाइनल कंपाउंड फॉर्मेशन विल बी RR। So alkane formation take place. So we may just note down here halogen here, ये जो halogen है, this is X is a very good living group. This is a very good living group. So we have to keep this thing in mind. Halogen का living group का order अगर हम देखें तो FClBrI is the basicity order. तो I minus is better living group than Br minus is better living group than
Cl minus is better living group than fluorine minus. So this is the order of living group. बिकॉज इसका बेसिसिटी जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. सो वट एवर द बेसिसिटी ऑर्डर विल बी, ये जो ऑर्डर हमने लिखा दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑर्डर. तो जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा उसका रिवर्स होगा लिविंग ग्रुप ऑर्डर. बेसिसिटी ऑर्डर चाहे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. बेसिसिटी ऑर्डर जो होता है वो होता है एफ माइनस मोर देन Cl माइनस more than Br minus more than I minus. बिकॉज हमें पता है कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम तो बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो F minus FCl Br I all these are halogens and in period whenever we go downward basicity decreases. Hence जो भी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा उसका रिवर्स ऑर्डर होगा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर. लिविंग ग्रुप का ऑर्डर विल बी द रिवर्स ऑफ दिस बिकॉज दे हैव एन इनवर्स रिलेशन. सो वी कैन से दैट लिविंग ग्रुप एंड बेसिसिटी दोनों का रिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बेसिसिटी ऑर्डर is inversely proportional to the order of living group. That we must remember this. जो भी ऑर्डर बेसिसिटी का होगा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर का टेंडेंसी उसका रिवर्स होगा. तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जितना पुअर बेस होगा उतना ही बेटर लिविंग ग्रुप होगा और उतना ही जल्दी लीव आउट कर जाएगा. तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझ लेना है. दिस R माइनस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस X इज एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप मतलब जो रिएक्शन से भाग जाता है, जो भागने की टेंडेंसी रखता है, जो लीव आउट होने की टेंडेंसी रखता है या जो भागने की टेंडेंसी होता है उसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप. जो अटैकिंग मींस वॉरियर टेंडेंसी, इसको इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये अटैकिंग टेंडेंसी है, तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल इज समथिंग लाइक न्यूक्लियस लाइकिंग स्पीसीज. तो जहां भी उसको न्यूक्लियस दिखेगा, वाई वी कैन से दैट इट इज न्यूक्लियस हियर बिकॉज यहां पे R पे आ चुका होगा डेल्टा प्लस एंड X पे आ चुका होगा डेल्टा माइनस ड्यू टू पोलराइजेशन, और वी कैन से दैट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज इसको देखने को मिल रहा है, किसको, न्यूक्लियोफाइल को दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल डेल्टा प्लस है, तो ये अटैक कर देगा वहां पे. सिंस न्यूक्लियोफाइल हैव अ वेरी गुड अटैकिंग टेंडेंसी, तो डेल्टा प्लस चार्ज इसको दिख रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अटैक कर देगा. हेंस दिस इज न्यूक्लियोफाइल. और जो लीव आउट हो रहा है, कौन लीव आउट हो रहा है, ये X वाला लीव आउट हो रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप. दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. Okay, so this was the entire mechanism. So we have some limitation in Woods reaction. Only symmetrical kind of alkane can be prepared in good amount, like CH3 दोनों symmetrical जुड़ रहा है. तो यहाँ पे ऑड नंबर वाले, जितने भी ऑड नंबर के कार्बन के अल्केन होंगे वो बनाना पॉसिबल नहीं है वुड्स रिएक्शन में. सिर्फ इवन नंबर वाले, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा, लाइक इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है. सपोज हमें 5 नंबर का अल्केन बनाना है तो पॉसिबल नहीं होगा. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन. नाउ लेट अस कंसीडर द फिटिक रिएक्शन. व्हाट इज फिटिक रिएक्शन? सो इन फिटिक रिएक्शन वी यूज aryl chloride instead of alkyl chloride. We use aryl chloride and it reacts with sodium to produce RR again. So here we are using R as aryl group. In presence of sodium it gives RR. यहाँ पे भी वही है, दोनों जब भी एराइल होगा तो उसको बोलेंगे फिटिक रिएक्शन. द नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स फिटिक रिएक्शन. यूजुअली यहाँ पे सोडियम के जगह पे जिंक यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. वी विल बी यूजिंग जिंक. सो दिस इज कॉल्ड एज वुड्स फिटिक रिएक्शन. सो व्हाट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन? हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक अल्काइल लेना है, एक अराइल लेना है, दूसरा अल्काइल लेना है. अराइल और अल्काइल का जो क्रॉस कॉम्बिनेशन होगा उसी को बोलेंगे वुड्स रिएक्शन. वुड्स मींस अल्काइल, फिटिक मींस एराइल. तो वुड्स वाला पार्ट ये है और फिटिक वाला पार्ट ये है. तो अल्काइल और अराइल का जब इंटरमिक्सिंग होगा तो बनेगा वुड्स फिटिक रिएक्शन. सो वी कैन सी हियर मैकेनिज्म. यहां पे जिंक डालेंगे तो जिंक के प्रेजेंस में माइनस और यहां पे प्लस, यहां पे बन जाएगा Zn प्लस
सो एंड देन CH3Cl के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा ZnCl2। एक्चुअली ये बनाएगा ZnCl2। जिंक क्लोराइड। ओके, सो इनफैक्ट यहाँ पे ZnCl2 बना रहे हैं तो यहाँ पे Zn टू प्लस यूजुअली जनरेट होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ ये ले लेंगे, तो एक Zn2 प्लस यहाँ के 2 मोल ऑफ इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन कर लेगा। Zn2 प्लस एक ही रहेगा और ये वाला 2 मोल रहेगा, और इसके साथ कॉम्बिनेशन करके ये जो बनाएगा 2 मोल बना लेगा, तो इसको भी 2 मोल ले सकते हैं हम लोग, तो ये वाला 2 मोल बना लेगा और ZnCl2 बन जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज नथिंग बट द वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, एक अल्काइल लेंगे दूसरा अराइल लेंगे, दोनों का क्रॉस कॉम्बिनेशन होकर जो मिलेगा उसी को बोलेंगे वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने ये कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड है, क्रॉस कॉम्बिनेशन करा के हमने ये कंपाउंड बना दिया। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज called as Clemenson reduction. Clemenson reduction is a very good method for the preparation of alkanes from aldehyde और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने पे क्या बन जाता है, अल्केन। तो एल्डिहाइड और कीटोन जब रिड्यूस होता है तो ये बनाता है अल्केन। दिस मेथड इज कॉल्ड एज Clemenson reduction। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग, ये कीटोन है, इस पे डाल दिया हमने ZnHgHCl। सिंपली मीनिंग ऑफ HCl एसिडिक मीडिया। HCl मतलब H प्लस प्रोटॉन देता है, एसिडिक मीडिया है। सो एसिडिक मीडिया में ये काम करेगा और ये अल्केन बना लिया डायरेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि एसीटोन है, ये हमने लिया है एसीटोन। दिस इज नथिंग बट द एसीटोन। एसीटोन पे हमने डाल दिया है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट ZnHgHCl और इसको बना दिया प्रोपेन। सो फ्रॉम एसीटोन वी आर गेटिंग प्रोपेन। नाउ वी हैव टू बी केयरफुल दैट Clemenson reduction takes place in acidic media, not in basic media। कभी भी भूल से भी NaOH नहीं ले लेंगे, HCl ही लेना है, और NaOH लेंगे तो रिएक्शन फेल हो जाएगा, नहीं तो कुछ और ही अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना लेगा, वो अल्केन नहीं बनाएगा। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू यूज एसिड नॉट बेस। So this is nothing but the Clemenson reduction process. Now second reaction that is very similar to that Clemenson reduction, but थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि ये बेसिक मीडिया में काम करेगा, that is Wolff-Kishner reduction। इसमें भी क्या कर सकते हैं, एसीटोन फिर से हमने ले लिया है, एसीटोन ले सकते हैं या फिर कोई भी कीटोन ले सकते हैं। कीटोन को डाल देंगे N2H4 KOH में। KOH मीन्स व्हाट, दिस इज अ बेसिक मीडिया। KOH मीन्स व्हाट, बेसिक मीडिया। तो KOH जैसा बेसिक मीडिया लिया तो ये बना लेगा अल्केन। सो कीटोन हैज बीन ट्रीटेड विथ NH2NH2। NH2NH2 is called as hydrazine। This is nothing but the hydrazine। So whenever hydrazine reacts with aldehyde or ketone, they used to form oxime। They used to form oxime। और ये कैसे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। तो एसिडिक मीडिया के प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन बनाता है। पहले कैसे बनाएगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है एक्चुअली ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। दिस इज न्यूक्लियोफाइल हियर। न्यूक्लियोफाइल मीन्स अटैकिंग टेंडेंसी, जो अटैक करता है न्यूक्लियस लाइकिंग। न्यूक्लियस लाइकिंग कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा प्लस जनरेट हो रहा है और यहाँ पे डेल्टा माइनस जनरेट हो रहा है। तो पार्शियल पोलरिटी की वजह से यहाँ पे डेल्टा प्लस जनरेट हो चुका है, तो उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे जहां पे डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट हुआ है, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसलिए अटैक करना इसको बहुत आसान है। तो अटैक करने के बाद कुछ इस तरीका का कंपाउंड बना लेगा। बाद में यहां से H प्लस लूज होगा, जिसको बोलेंगे माइनस H प्लस, और इसी को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, और वापस यहां पे जाके H प्लस जुड़ जाएगा। लेट मी रिपीट द प्रोसेस। यहां से H प्लस लॉस होगा और यहां पे H प्लस गेन होगा। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीप्रोटोनेशन एंड प्रोटोनेशन। माइनस H प्लस इज deprotonation and plus H plus is called as protonation. So removal of H plus is deprotonation and adding H plus is protonation. तो after this process यहाँ से एक H plus रिलीज हो रहा है और यहाँ पे H plus जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद ये बना लेगा इस तरीके का कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड बना लेगा।
एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, OH माइनस इज बेस हियर। ध्यान देना है कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बेस है। कभी कभी OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, कभी कभी बेस का रोल होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कब बेस है और कब न्यूक्लियोफाइल है? ये अपना नेचर बदलता है, कैरेक्टर बदलता है, बिकॉज इसका कैरेक्टर फिक्स नहीं है। It have a moderate nature. It does not have a concrete nature or a fixed nature. It will change their activity as per the given situation. तो ये वाला जो सिचुएशन दिया हुआ है इसमें इसको दिख रहा है एसिडिक हाइड्रोजन इज अवेलेबल, तो ये अटैक कर देगा बेस के जैसा और H प्लस गेन कर लेगा। तो जब भी OH माइनस H प्लस गेन कर रहा है तो उसको बोलेंगे बेस, और जब भी OH माइनस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। वी हैव टू रिमेंबर दिस। जब भी H प्लस गेन करेगा तो इसको बेस बोलेंगे, और जब भी किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा अटैक करके तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये एज अ बेस अटैक करके H प्लस गेन कर रहा है, ये बॉन्ड टूट गया और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट गया। तो टेक्निकली हो क्या रहा है यहाँ पे, H प्लस और OH मतलब वाटर रिलीज हो रहा है। सो दिस इज अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस ओवरऑल, और डिहाइड्रेशन होने के बाद मतलब यहाँ पे +1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हुआ रहेगा। तो ये बना लिया ये वाला कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड ये बना चुका है। तो ये जो कंपाउंड है ये बाद में रिएक्शन करके कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा। सो हाइड्रोजन रिएक्ट करके यहाँ पे ये बना चुका है, और फाइनली यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि OH माइनस यहाँ पे फिर से वापस अटैक कर रहा है। वो अटैक कैसे करेगा, ये जो OH माइनस है ये वाला अटैक कर रहा है यहाँ पे, और ये H प्लस गेन हो गया। तो टेक्निकली हो क्या रहा है, यहाँ पे भी माइनस H प्लस हो रहा है, मतलब डी प्रोटोनेशन। तो ये वाला OH माइनस अटैक कर दिया, यहां से H प्लस गेन कर लिया, तो इसका H प्लस लूज हो गया। H प्लस लॉस होने की वजह से इस प्रोसेस को बोलेंगे डी प्रोटोनेशन। लॉस ऑफ H प्लस इज नथिंग बट द डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन के बाद ये कंपाउंड बन चुका है। दिस इज नॉट ऑक्सीम बट सिमिलर टू दैट ऑफ ऑक्सीम। तो ये ऑक्सीम तो नहीं है। ऑक्सीम क्या होता, जब यहाँ पे ओ होता तो इसको ऑक्सीम बोलते, बट ये ऑक्सीम नहीं है। ये कुछ कुछ इमीन टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया, जो कि बाद में यहाँ पे जो C पे माइनस आ चुका है, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, या यहाँ पे इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गेन करने से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ चुका है, जो कि वापस वाटर से एक H प्लस गेन कर लेगा, और वाटर से H प्लस गेन करने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा। बाद में ये H प्लस लॉस हो जाएगा, ये वाला H प्लस लूज हो जाएगा। कैसे, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद टेक्निकली हमें N2 गैस यहां से रिलीज होगा। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज एक OH अटैक कर रहा है यहाँ पे। टेक्निकली स्टार्ट यहीं से हुआ। इस बार भी ये OH, ध्यान देना है कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये OH भी यहाँ पे भी ये बेस का काम कर रहा है, नॉट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन से बॉन्ड नहीं बना रहा है। ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, H प्लस गेन कर रहा है, इसलिए कार्बन से इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं होने जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ बेस नॉट न्यूक्लियोफाइल। यहां से एक हाइड्रोजन गेन किया, ये बॉन्ड टूटा और यहां से N2 हुआ। तो टेक्निकली ये प्रोसेस को बोल सकते हैं फिर से डीप्रोटोनेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, डीप्रोटोनेशन। दिस होल कंपाउंड इज लूजिंग H प्लस। हाउ इट इज लूजिंग H प्लस, ये वाला हाइड्रोजन लूज कर रहा है, और क्या लूज कर रहा है, N2 गैस लूज कर रहा है, और फाइनली ये अल्केन बना लेगा। ये फाइनल स्टेप है। तो फाइनली लूज क्या क्या हो रहा है वो समझेंगे। माइनस H प्लस तो लूज कर ही रहा है, और माइनस N2 गैस भी लूज कर रहा है। तो यहाँ पे N2 गैस भी बनेगा और प्लस H प्लस भी बन चुका है। यहाँ पे वो H प्लस एक्चुअली वाटर के साथ जाके वाटर बना लिया, OH माइनस के साथ जाके वाटर बना चुका है। ये वाला, ये OH माइनस और ये H प्लस मिलके यहाँ पे वाटर बना लिया। तो N2 गैस यहाँ पे रिलीज हुआ, और ये जो कंपाउंड है यहां से H प्लस गेन करके फिर से ये बना लिया अल्केन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट Wolff-Kishner reduction takes place in basic medium while Clemmensen reduction requires acidic medium. We have to understand the difference. चाहे वो Wolff-Kishner reduction हो WKR, या फिर वो हो Clemmensen reduction दैट इज CR, दोनों का दोनों एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। बट दोनों का एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि ये बेसिक मीडिया में काम करता है और क्लेमेंस रिडक्शन एसिडिक मीडिया में काम करता है। दोनों के मैकेनिज्म इंटायरली डिफरेंट है, बट प्रोडक्ट दोनों सेम बनाता है।
एल्डिहाइड पे डालें, कीटोन पे डालें, ये अल्केन में ही कन्वर्ट करेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं उल्फ किस्टन रिडक्शन में कीटोन पे डाला, बना दिया अल्केन। क्लेमेंसन रिडक्शन वाला प्रोसेस देखें तो वो भी एसीटोन को बना दिया अल्केन। प्रोडक्ट दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम बना रहा है, बट मैकेनिज्म दे हैव इंटायरली डिफरेंट। एक एसिडिक मीडिया में काम करता है और दूसरा बेसिक मीडिया में काम करता है। सो नाउ वी कैन कंसिडर वन प्रॉब्लम जो कि ऑलरेडी आईआईटी में आ चुका है, पहले पूछा जा चुका है। तो आईआईटी में क्या पूछा गया, एक ये कंपाउंड दे दिया गया, उस पे बनाना था हमें ये कंपाउंड, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे जिससे ये बनेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे। देन ये कंपाउंड दे दिया गया और यहां से ये बनाना था। देन द क्वेश्चन वाज कौन सा रिडक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे उल्फ किस्टन रिडक्शन। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये कंसिडर किया है कि अगर ये कन्वर्जन करवाना हो तो हमें क्लेमेंसन रिडक्शन कराना होगा, ये कराना है तो उल्फ किस्टन रिडक्शन कराना होगा। अगर इसमें उल्फ किस्टन रिडक्शन कराएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, लेट्स सी। अगर ए में क्लेमेंसन रिडक्शन के जगह पे अगर उल्फ किस्टन रिडक्शन करवाया तो OH माइनस विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा, नॉट बेस। ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, OH माइनस विल बिकम न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा क्योंकि वो कार्बन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है। तो वो डेल्टा प्लस चार्ज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरीन पे है डेल्टा माइनस और इस वाले कार्बन पे है डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का चांस मिल रहा है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, इट हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अटैक कर देगा यहाँ पे और अटैक करके क्या हो जाएगा, Cl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। बट इन द एक्चुअल प्रॉब्लम हमें क्लोरीन को भगाना नहीं था। क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बेसिक मीडिया में वो भाग जाएगा क्योंकि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करना चालू कर देगा। तो क्लोरीन को भगाना नहीं था, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर बेसिक मीडिया लेंगे तो भाग जाएगा और OH आ जाएगा। तो इस इस क्वेश्चन में क्या था, कन्वर्जन इस तरह से कराना था कि क्लोरीन को रिटेन करना है। सिमिलरली यहाँ पे OH को रिटेन करते हुए बनाना है ये रिडक्शन। दोनों केसेस में रिडक्शन तो हो रहा है, ये दोनों रिड्यूस होकर अल्केन बना रहा है, यहाँ भी अल्केन बना रहा है। बट द कंडीशन इज वी डोंट हैव टू रिमूव क्लोरीन एंड वी डोंट हैव टू रिमूव OH। तो OH को कंटेन करने के लिए अगर हमने कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, अगर एसिडिक मीडिया यूज किया तो OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट इज अ पावरफुल बेस। बट अगर हमने उसको प्रोटोनेशन करा दिया तो H2O वीक बेस बन जाएगा और दैट विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप बनने के बाद क्या हो जाएगा, वाटर अपने आप यहां से निकल जाएगा और क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे OH को भगाना नहीं था या किसी तरह का चेंज किए बिना रिडक्शन करना था। तो सेफर साइड के लिए यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे बिकॉज इट वर्क्स इन एसिडिक मीडिया। यहाँ पे बेसिक मीडिया में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, OH कंटेन रहेगा, रिटेन रहेगा और इस तरह से कन्वर्जन पॉसिबल हो पाएगा। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि अगर ऐसे कन्वर्जन करवाए जाए तो क्लोरीन को रिटेन करते हुए रिडक्शन कराना है तो वी विल यूज क्लेमेंसन रिडक्शन। OH को रिटेन करते हुए ये कन्वर्जन कराना है या रिडक्शन कराना है तो वी विल यूज उल्फ किस्टन रिडक्शन। अगर हमने मीडिया चेंज किया तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, क्लोरीन विल गेट रिप्लेस्ड बाय OH and in here OH will get replaced by chlorine as per the mechanism we can see here। ये कार्बोकेटाइन बना लेगा और इस तरह से it will lead to a formation of this। So I hope it is clear। So let us consider some problems as we learned। सपोज यहां से कन्वर्जन करा के हमें ये कंपाउंड बनाना है तो सुटेबल रिएजेंट कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है विल्किंसन कैटलिस्ट। बिकॉज अगर हमने NiH2 डाला तो वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को भी और CC डबल बॉन्ड को भी। बट हमें सिर्फ अगर CC डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराना है तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन देता है कौन, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये CC डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और एल्डिहाइड या कीटोन का जो बॉन्ड है उसको रिड्यूस नहीं करेगा। The next problem is कि we have given a triple bond and we have to reduce it
विथ सिन एडिशन और सिस कंपाउंड बनाना है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारा का सारा सिस बना रहा है। तो उसके लिए यूज करेंगे NiH2. NiH2 gives selective reduction. Sorry, NiH2 does not give selective reduction, but yes, it converts CC triple bond to CC double bond. And in case of excess amount, it will convert CC double bond to CC single bond as well. Then we have to convert this. Then if we add CC triple bond to Lindlar's catalyst, that is H2PDBSO4, it will again convert this compound to CC double bond with syn addition and cis compound. And that can be done also with P2 catalyst. What is P2 catalyst? H2 nickel boroid, H2Ni2b, B is boron. So H2 निकल बोरॉइड के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो हमें ध्यान देना है कि ये जो रिएजेंट होता है, दिस वन गिव सेलेक्टिव रिडक्शन। This one gives selective reduction. This one also gives selective reduction. सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है? ये सिर्फ सीसी ट्रिपल बॉन्ड को सीसी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, सीसी डबल बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं करता है सीसी सिंगल बॉन्ड में। तो सीसी ट्रिपल बॉन्ड को सीसी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कराना हो तो आप यूज कर सकते हैं आइदर P2 कैटलिस्ट नहीं तो लिंडलार्स कैटलिस्ट। बट अगर NiH2 भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे इसका अमाउंट फिक्स होना चाहिए 1 इक्विवेलेंट। अगर हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो अल्कीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन। इन दोनों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को अगर एक्सेस भी ले लेंगे, इन दोनों में से किसी को एक्सेस भी ले लेंगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन नहीं होगा, बिकॉज इट गिव्स सेलेक्टिव रिडक्शन।